Hello friends, this is Vikas Singh and I welcome you on Leaders Lounge. Leaders Lounge हमारा एक पॉडकास्ट है जो हम इंग्लिश में पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट करते हैं और ये इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव होता है दैट वी ब्रिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और हम उनसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाने में मदद करता है. We ask certain entrepreneurship related questions. If we have a subject matter, we take up his subject and we get into the a little part of technicalities of those subjects. So here we have Suyash Sabnani, one of my favorite most HR professional in the city. इंदौर में बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स आपने देखे होंगे और बहुत सारे HR के एक्सपर्ट से मिले होंगे. I guarantee that very few can touch the intellect and the depth that an HR guy has to have, which Suyash has. सुयश के पास में बहुत सारी ऐसी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं which I really admire a lot. सुयश ने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एचआर प्रोफेशनल के तौर पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में काम किया है. इंदौर की जो सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ हैं उनके एचआर कंसल्टेंट या एचआर प्रैक्टिशनर रह चुके हैं, एचआर हेड रह चुके हैं सुयश. आपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम सुना हो, आपने सिस्टमेटिक्स का नाम सुना हो. इन कंपनीज के साथ में सुयश काफी समय से काम कर रहे हैं, आईटीआरसी के साथ में काफी समय से काम कर रहे हैं. सो दैट्स his journey. I would like him to describe his entire journey on the career and let's discuss a few challenges that startups and MSMEs face when it comes to do the right kind of HR exercises. Over to you, Shreya sir. First of all, describe how you have been practicing this entire thing for so many years. कितने साल से practice कर रहे हैं आप HR? Sir, close to now, 19 years. Okay, this is around 2 decades. 2 decades, close to that. I Very started nice. my HR journey from 2005. माइक आपका अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है. So I started my HR journey from 2005. Now 2005 से 25 आने वाला है, मतलब 20 साल हो गए आपको. लगभग 20 साल. वेरी वेरी सिमिलर जर्नी. लाइक मुझे तो ऐसा लगता था मैं बहुत सीनियर हूँ आपसे, बट आई स्टार्टेड इन 2005 विद एडवर्ल्ड एज कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट एंड एचआर कंसल्टिंग. तब मैंने शुरू करी थी ओडी कंसल्टिंग. उस टाइम आई वाज वेरी फैसिनेटेड टुवर्ड्स ओडी. तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टिंग करी थी एडवर्ल्ड और स्विफ्ट इंटरमीडिया कन्वर्जेंस लिमिटेड, एक कंपनी हमारे यहाँ. राहुल जैन सर चलाते हैं स्विफ्ट को. वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट प्रोफेशनल. अगर आपको पिछली जनरेशन्स के बेस्ट प्रोफेशनल से मिलना है तो कभी जिसको भी मौका मिले, राहुल जैन सर हैं स्विफ्ट के फाउंडर, उनसे जरूर मिलेगा. नाउ ही इज इन हिज 60s बट स्टिल चार्मिंग, अट्रैक्टिव एंड वेरी डेशिंग. कभी उनको बुलाएंगे हम लोग. तो वो मेरे पहले क्लाइंट थे 2005 में. आई बिलीव उनके भाई बेसिकली, वो उनके भाई राजेश भाई हैं, राजेश जैन. हालांकि राजेश भाई इज हार्डकोर इंदौरी एंटरप्रेन्योर, बट राहुल जैन सर इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर. सो उनके साथ मैंने शुरू किया था. सो यू स्टार्टेड इन 2005 विथ whom? See, my journey is a very roller coaster ride, actually. So this is what, like, if I move back and look after my entire journey, so this is, थोड़ा लाउड एंड क्लियर होना पड़ेगा आप. crossing all the barricades in the terms. Like, after completing a academics, I just came down to the north and joined the ITL Industries. So that was my first employer. That's Indore Tools Limited. Indore Tools. So that was my employer, and they deployed me on their corporate HR. Okay. So I look after one unit of expansion, like, in my tenure. So I started with manufacturing, then I got a chance to move to organized retail, and that is into big cinemas. That's Anil Dhirubhai Ambani venture of ADAG Big Cinemas. So big cinemas was organized retail. So from manufacturing to organized retail, then from big cinema to consulting company, Instamanpower, and then from consulting company to IT and ITES services. So when did you join IT industry? See, it's close to now 1 decade, more than a decade. 2013 I joined IT industry. अच्छा,
Okay, very nice. Here also the same thing happened. 12 में मेरे 11 12 में I joined this MFs. MFs तो थी ही नहीं, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था. Okay. 13 I've joined IT industry, and so I got 4 different industries exposure. And the one thing was common with all these industries. Every time, like people have that question in their mind. So Especially, IT you joined with directly with CIS? yes. Prior to that, Thank you. I've started consulting with IT companies. I was consultant to PSL, that is Pratham Softwares Jaipur, and I was consulting to ClearTrail and Impetus. Okay. I was the first person of Indore who started his own RPO. I deployed 9 recruiters on Impetus IT Park. Mm-hmm. So when Impetus was the first employer when they started their operations in Crystal IT Park, so they were into an expansion mode, and they gave me an outrightly assignment to recruit people, especially for ClearTrail and Intellicus. So that was a big job. That was my major learning when I get to know more deeply about IT industry, and then cyber infrastructure was a kick. And So then cyber infrastructure was a big venture because उन्होंने these guys are really fine. मतलब मुझे अमित particularly बहुत पसंद है उन तीनों में. मतलब because somehow I got connected with him in 2011 when I was leading journalism and all for a particular Nano Darshan was the magazine's name. उसके सीईओ के तौर पे थोड़े दिन काम करा था, तो आई कंडक्टेड देयर इंटरव्यू. एनीवेज, सो अब हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि एचआर के चैलेंजेस क्या क्या आते हैं लोगों को एंड हाउ दे शुड डू डील. पहला चैलेंज तो हम स्टार्टअप से शुरू करके और थोड़ा मिड साइज कंपनीज तक जाने की कोशिश करेंगे, 1000 लोगों की कंपनीज तक. तो शुरू के क्वेश्चन बेसिकली स्टार्टअप्स के काम के हैं, जहाँ पे एचआर पर्टिकुलरली उस तरह का चैलेंज समझा ही नहीं जाता है, बिकॉज दूसरे बड़े चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं. बट एचआर अगर करेक्ट कर लिया जाए, मेरा मानना है, तो बहुत सारे स्टार्टअप चैलेंजेस पैदा ही नहीं होंगे. जैसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या हाउ टू हायर योर कोर टीम, फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज. एक कंपनी को कैसे हायर करना चाहिए, बिकॉज स्टार्टअप्स के साथ में कुछ अपने ही लेवल की समस्या होती है. एक तो पैसा ही नहीं होता देने को उनके पास उतना ज्यादा. दूसरा, उनको जो हायर करने होते हैं वो उनकी कोर टीम के लोग होते हैं, और चूंकि कोर टीम के लोग होते हैं तो उनका पूरा सर्वाइवल, मतलब अगर मान लीजिए मुझे मेरा एक सीटीओ हायर करना है, तो आई कैन नॉट हायर 25,000 का 20,000 का बच्चा, बट आई कैन नॉट पे बियॉन्ड दैट. वैसी वाली कंडीशन है. तो फिर उस कंडीशन को कैसे मीटअप किया जाए, मतलब उससे कैसे निपटा जाए. स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है रिक्रूटमेंट अट्रैक्शन. हाँ, लाइक अट्रैक्ट करना है. एस्टैब्लिशमेंट में लोग जो सबसे पहले चीज देखते हैं, मतलब any job seeker whenever he go for an interview, first he want to see how many people are working, and startup challenge is the limited number of people. So how we attract talent, right? So यहाँ पे इनिशियली जब आप अपनी कोर टीम बना रहे होते हो, तो एक मेजर फोकस होता है उस प्रमोटर का कि उनका विजन और कैंडिडेट का पैशन दोनों अलाइन होने चाहिए. सो इफ यू फाउंड कैंडिडेट लेस स्किल्ड but more passionate towards work, or his approach towards learning is more on higher side, so that can be a right fit, because that passion drives him to work on limited resources. The startup have everything is limited resources, limited machineries, limited infrastructure, limited bank balance, maybe salary get delay, but that डिलेज इन passion is सैलरी, not लेट पेमेंट्स ऑफ सैलरी एक बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम है कि अच्छा ऑफिस ही नहीं है हमारे पास, वी डू नॉट हैव वेरी अट्रैक्टिव ऑफिस. हालांकि हम इंक्यूबेटर्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और टू एन एक्सटेंट को वर्किंग और इंक्यूबेटर के कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर भारत के ज़्यादातर हिस्से में ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया है. तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि जिस कैलिबर के लोग चाहिए उस कैलिबर के लोग इस लेवल की कंपनीज को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं. तो व्हाट इज योर सॉल्यूशन. यू से कि आपके आइडियोलॉजी, आपका विजन उसके पैशन से मैच करना चाहिए, ऐसा. ड्यूरिंग इंटरव्यू हमें उसका लर्निंग कर्व देखना ज्यादा जरूरी है. वी नीड टू स्कैन दैट हाउ मच दैट कैंडिडेट हैव दैट अप्रोच ऑफ लर्निंग मोर, रेडी टू टेक ये कैसे पता करेंगे, जी. ये कैसे पता करेंगे.
वो सर उसकी प्रोफाइल में और उसके इंटरव्यू के दौरान हम गेज कर सकते हैं। अगर वो हम उसको इन डेप्थ उसका पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशंस रहते हैं वो देखे जा सकते हैं। इवन जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट और हॉबीज होती हैं वो भी बहुत ज्यादा एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को गेज करने में मदद करती है। इफ जैसे एनीबडी, मान लीजिए आप एक टेक्निकल हेड या टीम लीड के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, और अब आपके पास में, चूंकि आप फ्रेश कंपनी है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप, तो आपको तो 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस भी मिल जाए तो आप टीम लीड बनाने को तैयार है, क्योंकि आपको तो उतना ही नहीं मिल रहा है ना। तो अभी आप हाउ आर यू गोइंग टू जज द लर्निंग कर्व ऑफ दैट गाय, और किसी फ्रेशर का लर्निंग कर्व कैसे जज करें, सी अगर या जैसे इंक्लिनेशन कैसे? एक्सपीरियंस की बात की जाए कि 1-2 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक अच्छा लर्न कर चुका है एंड ही वांट टू जॉइन, सो फर्स्ट रीजन इज व्हाई ही वांट टू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ऑफ लीविंग। So, how that candidate is replying, although the process of interview is something where, both the parties behind the table or in front of table, they both of them are showing them more superior than amongst other. But still, if we are able to judge rightly, who candidate, why, what is the reason of his switch, first thing. Second, in terms of apart from his academics or apart from his work ex, if he is voluntarily involved in other stuffs, like maybe he's participating somewhere else, or during his academics, is that candidate was engaged with, like, स्कूल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीसी क्रेडिट्स बनते हैं या कॉलेज के दौरान भी एनसीसी में रहते हैं। प्रोएक्टिव एनसीसी एटीट्यूड, वो जो है ना, सेवन something एटीज where में। they get to learn discipline and teamwork। तो उसका स्पोर्ट्स, इवन अगर वो स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत भी एक्टिव है तो उसका स्पोर्ट्स कौन सा है। if that candidate is play football, so he know and he understand the importance of teamwork, but if the candidate play tennis, then he can be individual contributor। so this is one parameter। second is uh, all aspect angles are there, we need to check on every parameter। reason of leaving, अगर वो सिर्फ सैलरी के लिए जाना चाह रहा है, if he said that my first employer is very okay, I just want to move अच्छा, just for money। टेक्निकल हायरिंग में पर्टिकुलरली टेक्निकल साइड ऑफ बिजनेस और बिजनेस साइड ऑफ बिजनेस, इन दोनों में जब आप हायर कर रहे हैं तो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं, क्या ध्यान रखना? टेक्निकल साइड ऑफ बिजनेस में कितनी ज्यादा स्किल सेट्स पे वो काम कर चुके हैं, कितना अप टू द डेट। ओके। और बिजनेस साइड ऑफ हायरिंग में कितना फिगर सेंट्रिक है, so नंबर फोकस the कितना time है? candidates, most of the time candidates want to switch because they are not learning anything new with their current company, they are doing the same monotonous job। that can be an ideal match, but again, retaining that particular candidate, you need to make sure that every time you have new challenges with you। And how much ideologies and core values impact hiring? Like, अभी तो कंपनी स्टार्टिंग स्टेज में है या पहले 10 एम्प्लॉय हायर कर चुकी है, अब वहां पे आइडियोलॉजी, कल्चर, कोर वैल्यूज, इनकी बातें कितनी मायने रखती हैं आपके हिसाब से? See, if the number is 10 plus, then there must be clear core value and vision must be spread among that first 10 people inside the organization, if you really want to drive that organization on such core values or principle of the organization। so communicated होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब प्रमोटर के विजन और कोर वैल्यूज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एम्प्लॉइज के अंदर, वो टीम मेंबर्स के अंदर किसी भी मोड से, मतलब देयर आर वेरियस मोड्स where we can thoroughly put that core values and vision of an organization inside them in each and every activity, be it is a process or in something। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोर वैल्यूज को डिसाइन किया था और लकीली उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया था पास्ता। सो पास्ता स्टैंड फॉर, P stand for passion, A stand for appreciation, S stand for simplicity, T stand for trust, and last A stand for accountability। So it was a core value of an organization। In short, pasta, Gen Z and Y2 generation के favorite foods में से एक। हाँ। So putting that
pasta as a core value that becomes our reward and recognition process. So as a policy inside the organizations, there's an entire reward and recognition rounded under core values. हम्म So, why I'm doing this job? Because I'm passionate. If I do job well, I get appreciated. We don't want any buttering. We are very good at simplicity to our work. We trust each other, how a team can build, how the cross team is functioning. Like maybe 10 people organization, definitely अगर एक IT का setup है तो उसमें maybe a couple of them are into digital marketing or two of them are into designer rather than developer. So it's a teamwork. A designer can go into user interface creation or give you the right UX feeling, but a developer need to know the integration part, the business logic behind it. But if it is a teamwork, if they have a trust each other, so instead of arguing each other, they will be in trust and they will be mutually aligned and accountable to that. Here we were talking about this thing. ये इंटरव्यू के पहले अपन लोग जब बात कर रहे थे कि फाउंडर्स इन्वॉल्वमेंट इन एचआर प्रैक्टिसेस, उस पर आप बात कर रहे थे, तो उसको थोड़ा एलिब्रेट करें, बिकॉज वो बहुत एक सिग्निफिकेंट बात है कि कई बार क्या होता है, फाउंडर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मैस क्रिएट कर देते हैं। कई बार रिलक्टेंट रहते हैं कि यार मेरे को तो धंधा लाना आता है, आई नो कि टेक्नोलॉजी कैसे बनाते हैं, आई नो प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मुझे मेरा बिजनेस आता है, तुम तो एचआर वेचआर तुम संभाल लो सब। सो व्हाट इज द राइट बैलेंस दैट वी नीड टू स्ट्राइक, और हाउ डू वी डू दैट, और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फाउंडर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए? बिकॉज यहाँ जो इस वीडियो को देखने वाले हैं वो ज्यादातर फाउंडर ही हैं, एचआर प्रोफेशनल्स तो बहुत कम लोग देखेंगे इस वीडियो। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ, जैसे आपने बताया ना 10 नंबर्स, लेट्स से एग्जांपल ऑफ 10 नंबर, तो जितना ज्यादा वक्त एक प्रमोटर एचआर एक्टिविटीज में रहेगा, किसी स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल को हायर नहीं करेगा, तो दो चैलेंजेस उसके सामने हमेशा मिलेंगे। तो जो उसकी जो फर्स्ट कोर टीम है, मे बी 10 पीपल और 15 पीपल और 20 पीपल, वो उसके बाद वो भले हेड एचआर लेके आ जाए, वो टॉप 20 स्कूल से भी अगर किसी को हायर करके डिप्लॉय कर देगा, तो वो जो रिमेनिंग 19 एम्प्लॉइज हैं जो उस एचआर से पहले इन द सिस्टम में, वो एचआर को बाईपास ही करेंगे, बिकॉज देयर कनेक्ट विद द प्रमोटर इज डायरेक्ट। हाँ, बिकॉज वो तो उनको तो लगता है ना कंपनी तो हमसे खड़ी हुई है, और वो सही भी है, गलत नहीं है उनकी जगह। तो एक प्रमोटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या वो एक विजन रख रहा है, अगर एक नंबर्स, तो उस नंबर्स में वो कितने कम लोगों को डायरेक्टली इंटरेक्शन में लाना चाहता है। अगर वो चाहता है कि बस ये 10 लोग हैं, तो 11वां मस्ट भी एक एचआर हो, ताकि मैं 11 से 500 तक 1000 तक एचआर टीम के मोड से ही रहूं, एंड आई विल बी सेट फ्री फॉर डूइंग समथिंग इनोवेटिव, समथिंग मोर बिजनेस, समथिंग मोर वेंचर, समथिंग मोर पार्टनरशिप फॉर द कंपनी। अच्छा, एक यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सा ट्रिक है, जब कंपनीज छोटी होती हैं 15-20 तक, तो मतलब मैंने जब प्रैक्टिस करता था तब मैंने एक फॉर्मूला निकाला था कि 35 तक तो एम्प्लॉयर खुद ही मैनेज कर लेता है सारे ये 4 चीज, ठीक है, बट उसके बाद ही नीड्स टू हैव समबडी इन एचआर एज एचआर प्रोफेशनल। अब ज्यादातर मामलों में मेरे जैसे जुगाड़ू एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, हार्डकोर धीरू भाई फॉलोअर्स, तो वो दिमाग लगाते हैं यार एक सस्ती सी बंदी उठाओ, फ्रेशर, अंग्रेजी बोलती हुई, ठीक है, अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, फ्रेशर हो तो उसको सिखा हम से देंगे, क्योंकि अब हम कर ही रहे हैं इतने टाइम से, तो सिखा भी देंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि जब वो सीख जाएगी तो उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे हम, जब तक वो पत्रिका लेके नहीं आ जाती उसकी शादी की। बिकॉज ये बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि मैं मेरे शुरू के 10 साल तो यही परेशान रहता था कि ये बंदी कब, अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए इसको सिखाते सिखाते, अब ये शादी की पत्रिका लाएगी, तो मैं इसकी शादी की खुशी मनाऊं या इसके जाने का दुख, क्योंकि उसके मम्मी को पता नहीं उसकी विदाई का दुख होगा कि नहीं होगा, बट मुझे बहुत होता था क्योंकि वो बंदी चली जाती थी। अभी भी हमारी एक कंपनी में ये हो रहा है। नहीं सर, तो ये दिस इज द रियलिटी। बट एक जुगाड़ मैकेनिज्म हम लगाते थे, और वो मैकेनिज्म ये था कि हमको एचआर की बेवजह की बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड कॉस्ट बहुत हाई एंड प्रोफेशनल को लेने में नहीं देनी है। इससे मैं 300 लोगों तक की कंपनी भी लीड किया, मतलब बनाई मैंने अपने हाथ से, और वो बड़ी बात है मेरे लिए। माय से इज कि ये सही तरीका है क्या? नहीं है प्रोफेशनली। Professionally, there is a correction, because if you talk about HR systems or HR, like
operations HR or admin HR, that can be done by a software. वो अपना 1000 लोगों की कंपनी के लिए भी पेरोल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल, तो उसके हाँ लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं। लेकिन जो ह्यूमन कनेक्ट चाहिए, सी the major job of an HR professional is to bridging the communication between employer and employee. अगर एम्प्लॉयर डायरेक्ट एम्प्लॉय कम्युनिकेशन में रहता है तो वो वन वे कम्युनिकेशन, ही नेवर गेट फीडबैक, the actual feedback about the culture, actual feedback about the process, actual feedback about the organizational environment. You need one mediator person, and that person have matured enough to understand and communicate properly. दूसरा, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में जितना ज्यादा इन प्रमोटर्स और स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, ये प्रमोटर्स अगर इन्वॉल्व रहेंगे, वो अपना तो बहुत बड़ा पेन पॉइंट हो जाता है, बहुत ही इरिटेटिंग है। इतना कम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में सिलेक्शन डेफिनेटली ऑन अ स्मॉल नंबर, लास्ट स्टेज में, लास्ट फाइनल टू सिलेक्ट, but if they have somebody who can shortlist, pre-screen the candidate, first level interview or pre-screening assessment test can be done. So वो जो मैन आवर्स हमारे सेव होते हैं, वो मैन आवर्स हम कंज्यूम कर सकते हैं नया बिजनेस लाने, नया वेंचर। तो आइडियली एक, अब हम थोड़ी और बड़ी कंपनी पे बात करते हैं, आइडियली एक 50 से 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन या 50 से 75 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में HR मैनेजर कितने साल एक्सपीरियंस हायर करना चाहिए, पर्टिकुलरली टेक बिजनेसेस में? टेक बिजनेस में if the number is 50 plus, then you must have a HR of 5 years plus experience. एक बंदे से काम हो जाता है जी, 100 लोगों तक जो कैलकुलेटेड मैथ्स है, वो 100 लोगों तक हमें 3 रिसोर्सेज की जरूरत है। वो लोगों तक 3 लोगों का HR सिस्टम मिनिमम HR सिस्टम होना चाहिए, 3 लोग। और वो 3 लोग कौन कौन होने चाहिए? उसमें 2 रिक्रूटमेंट के लोग हो, जिनका 50-60% जॉब रोल रिक्रूटमेंट हो, और बाकी 20-30% जॉब रोल वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में हो, या PMS परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट में क्या करवाते हो आप? बर्थडे बनवाओगे? सबके केक काट काट के दे 1.5 साल तक क्या था मैं यहाँ एक बहुत बड़ा बहुत करेक्शन बड़ा पेन पॉइंट था, रंगोली बनवाओ, बर्थडे बनवाओ, और क्या क्या करवाते हो आप? नहीं नहीं, मैं यहाँ एक मेरे पास, अब तो खैर मैं बहुत सीख गया हूँ, बट आई वांट टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ, ये बहुत HR जोक्स चलते हैं लिंक्डइन पे, वो रंगोली बनवाएंगे, फिर दिवाली आ जाएगी तो फिर वो दिवाली के पटाखे उड़वाएंगे, फिर सबको जबरदस्ती पार्टियां करवाएंगे, बोलेंगे सैटरडे। मैं एक ऑरेंज जंक्शन प्रैक्टिस करता था, उस चक्कर में बेचारे एक आदमी को तो निकालना ही पड़ेगा, बोले मैं ऑरेंज जंक्शन अटेंड नहीं करूंगा, बड़ा बोरिंग होता है। यार यही तो एक्टिविटी करते हैं हम ढंग की। मैं एक बार एक बहुत मेजर करेक्शन यहाँ दे देते थे। आई जस्ट गिव यू अ मेजर करेक्शन। व्हेन वी से एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इट डजंट इन्वॉल्व इवेंट्स। और हम जितनी बातें कर रहे हैं, रंगोली बनाने से लेकर सेलिब्रेशन तक, दैट इज इवेंट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दीज इवेंट्स आर नॉट एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में क्या करते हैं आप? बेसिकली एम्प्लॉय एंगेजमेंट और ये एम्प्लॉय रिलेशन वाले इवेंट्स जो है, वो 2 अलग अलग चीजें होती हैं। जितने भी हम इवेंट्स करते हैं, वो बेसिकली एम्प्लॉयज को एंगेज नहीं करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ और आप बोलते हो रंगोली बनाओ। हाँ, तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? That is distraction. That is events. That is employee relations, where you want to give him homely feel, or where we want to give him a value. एम्प्लॉय एंगेजमेंट में क्या इंक्लूड करेंगे? बेसिकली एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो होता है, वही सबसे बड़ा करेक्शन है। ये क्या पता, ये मिथ लेकर हजारों रंगोली HR काम कर रहे हैं, और फिर हम जैसे बिजनेस HR के लिए भी लोगों को ये कमेंट आ हाँ, रहा है। अब तो ऐसे ही लगने लगा है बहुत सारी कंपनीज में, मतलब अब तो इंदौर थोड़ा मेच्योर हो गया। पहले ऐसा लगता था HR मैनेजर बोले यार एक लड़की हायर कर लो, कर लेगी। सर मैं बता देता हूँ, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रबर बैंड। हम HR में फीमेल्स बहुत ज्यादा, या आपने ही जैसे बताया कि कोई भी इंग्लिश अच्छी स्पीकिंग प्रेजेंटेबल वेल ऑफ फीमेल हायर करो। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो एम्प्लॉय हमारे साथ सिस्टम में आता है, जो इनिशियली टास्क कंप्लीट करने में 8 घंटे लगाता है, 6 महीने के अंदर वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उस टास्क को करने के लिए उसे 6 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे बच जाते हैं। और 8-9-10 महीने के अंदर उसकी लर्निंग कैपेसिटीज के अंदर चलते चलते वो 8 घंटे का टास्क 5 घंटे में कर लेता है, और 3 घंटे उसके पास फ्री है। HR
टर्मिनोलॉजी में हम दो टर्म्स को यूज करते हैं, जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे सिस्टम में मैच्योर होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी जॉब में इनरिचमेंट आना चाहिए। इनलार्जमेंट तो प्रमोशन हो जाता है, जहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन उसके जॉब में इनरिचमेंट आना चाहिए। अगर उसके जॉब में इनरिचमेंट नहीं है, अगर उसका जॉब इंगेजिंग नहीं है, तो वो आपके इंटरनेट पे दूसरी जॉब सर्च करेगा। एंड रिक्रूटिंग अ रिसोर्स इज लाइक अर्निंग मनी, एंड रिटेनिंग अ रिसोर्स इज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग दैट मनी। तो अगर आप सिर्फ रिक्रूट कर रहे हो और रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इनकम कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो अगर रिटेंशन, जो सेविंग है हमारी, वो रिटेंशन हो। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट टर्म स्टैंड फॉर कि वो डे वन में जितना 8 घंटे के लिए इंगेज था, वो डे 100 पे भी 8 घंटे इंगेज हो, उसके जॉब में इतना इनरिचमेंट हो, उसका जॉब रोल्स इस तरीके से धीरे धीरे एक्सपैंड किए जाए। तो अगर वो एक जूनियर डेवलपर है, जहाँ पे काम उसका सिर्फ कोड लिखना है, सिंपल कोडिंग करना, कोड टेस्ट नहीं करना है, यूनिट लेवल टेस्टिंग नहीं करना है, केस डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना, लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे पता है कि उसने 3 घंटे में कोड लिखा है, और अब तो चैट जीपीटी थैंक्स टू दैट और जल्दी उसने कोड लिखा है, तो वो कोड को रिव्यू करे, कोड की लाइब्रेरी को मेंटेन करे, डॉक्यूमेंटेशन करे। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सो एवरी डे दैट रिसोर्स मस्ट हैव दैट ईगरनेस टू कम टू ऑफिस, नहीं तो इंटरनेट आपका यूज करेगा और जॉब सर्च करेगा। दिस इज समथिंग दैट वी गॉट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स कि ज्यादातर टाइम पे एनलार्जमेंट और एंगेजमेंट की जो आपने डेफिनेशंस बताई हैं, आई अप्रिशिएट देम, बट मेरी खुद की समझ दूसरी है एनलार्जमेंट और एंगेजमेंट। और बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस, मैं इसको बहुत डेप्थ में और बहुत टेक्निकली इस पे बात कर सकता हूँ, विच आई रियली वांट टू टॉक, बट उस पे हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। आई वांट फाउंडर्स टू अंडरस्टैंड फ्यू फंडामेंटल थिंग्स। एक, आप और हम लोग हायर करते टाइम हमारी पैनिक हायरिंग पे ही सारा फोकस लगा देते हैं। एंड व्हाट इज दैट पैनिक हायरिंग, कि आज हमारे पास प्रोजेक्ट आया और उसके बाद हमने हायरिंग शुरू करी। अब आपको जो जिस रेट में मिलेगा, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना है, क्लाइंट नहीं छोड़ना है, मार्केट में अपनी गुडविल खराब नहीं करनी है, आप उस समय यदि हायर करने जाओगे तो आपकी प्लान्ड हायरिंग हुई ही नहीं। जब आपकी प्लान्ड हायरिंग नहीं हुई है तो आप सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करोगे अपने वैल्यू प्रिपोजिशंस पे। मतलब आपका जो वैल्यू, सॉरी, वैल्यू प्रिपोजिशन की जगह इसके लिए सही वर्ड है वैल्यू सिस्टम्स से कॉम्प्रोमाइज करोगे। अगर बंदा वैल्यू बेस्ड अप्रोच पे हायर नहीं भी हो रहा है बट स्किल्स उसकी मैच कर रही है, तो आप तो सोचोगे यार अभी तो स्किल्स की जरूरत है, स्किल्स पे हायर कर लेते हैं। यहाँ एक बड़ी फेल्योर हो जाती है कि वो कंपनी में मिसफिट हो जाता है और वो कल्चरल चैलेंज क्रिएट करता है। दूसरी बात आती है, जब आप उसको जॉब पे हायर कर लेते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हायर करने के पहले उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड वो आपके पास यदि तैयार नहीं है, इफ यू डू नॉट नो कि आपको उससे एग्जैक्टली क्या काम करवाना है, प्लीज डू नॉट हायर, क्योंकि एक दिन की भी सैलरी वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। आप उसको 8 दिन 15 दिन वेट करवा दें उस हायरिंग को, वो चलेगा, बट हैव अ प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रेडी। जब आपको पता है कि आप अगर ये आदमी आ गया तो मुझे इसका क्या करना है, तो आपका पैसा उस पर बर्बाद नहीं होगा। जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस या उसकी एलिजिबिलिटी फॉर द जॉब वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, तब आपका इंटरव्यू प्रोसेसेस प्रॉपर जाएंगी। नेक्स्ट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि ये जो रंगोली एचआर वाली प्रॉब्लम है जो आप लिंक्डइन पे देखते हैं, इट इज फाउंडर्स प्रॉब्लम। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये विचार उस एचआर एग्जीक्यूटिव की प्रॉब्लम नहीं है कि वो गेम खिलवा रही है ना, वो प्रॉब्लम आपकी एज फाउंडर्स है कि आपने उसको ये करने को कह दिया है, तो बेचारे को इतना ही समझ रहा है। अभी क्या होता है, व्हेन यू आर एंगेजिंग योर एम्प्लॉयज, यू आर नॉट जस्ट एंटरटेनिंग देम और डिस्ट्रैक्टिंग देम और इन्वॉल्विंग देम समवेयर। आपके साथ वो पार्टी करके करेगा क्या? 10 घंटे 12 घंटे आप अपनी कंपनी में उसको घीस रहे हो, उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में आउट बाहर जाना है, और फ्राइडे के दिन आप बुला लेते हो, शाम के दिन सैटरडे के दिन बुला लेते हो हम पार्टी करेंगे। क्या करेगा वो आपके साथ पार्टी करके? व्हाट यू शुड डू इज कि उसको छोड़ दो उसकी पार्टियां करने के लिए। Here you have to understand that you have to engage him for the entire time, and engagement comes from the growth
that you give to the guy. जो सुयश सर ने अभी एक्सप्लेन करी चीज, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम हमारे एम्प्लॉय को हायर तो करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए और काम करवाने लगते हैं कुछ और ही, अब उसका एनरिचमेंट नहीं हो रहा। या मान लीजिए अगर उसको आपने हायर कर लिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए और अब वो केवल पोस्ट बना रहा है या सिर्फ वीडियो एडिट करता चला जा रहा है, वो परेशान हो जाएगा, थोड़े दिन में वो बोर हो जाएगा उस जॉब से, वो दूसरी जॉब ढूंढने लगेगा। दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग, सिंस he is somebody who is not elaborating it, I took the opportunity and I'm elaborating it. अभी क्या है, अगर वो व्यक्ति he is not growing with your company, he is not growing every day with the work, then he'll get bored, because progress equals to happiness. वो आपको उसको हैप्पी रखने के लिए पार्टियां करवाना उतना एसेंशियल नहीं है, आपको हैप्पी रखने के लिए प्रोग्रेस देना ज्यादा जरूरी है। एंड दैट प्रोग्रेस कम्स व्हेन यू आर एनरिचिंग हिज जॉब कंटेंट। उसको रोज जो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्रामर हायर करा या आपने एक रिक्रूटर हायर करा, अब वो सारा दिन बैठ के रिक्रूट ही कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग वाला हायर करा एंड ही इज जस्ट पोस्टिंग पोस्टिंग हियर एंड देयर, तब उसको वो एनरिचमेंट फील नहीं होगा, और वो एनरिचमेंट नहीं फील होने की वजह से ही विल क्विट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट when it comes to a job enlargement kind of things. You enlarge a job only when the guy is ready to stretch and he wants to grow. If he does not want to grow, there are not many people who want to grow in their life faster than the pace of the society. नहीं तो वो नौकरी नहीं कर रहे होते आपके साथ। ज्यादातर लोग सिर्फ अबव एवरेज चलना चाहते हैं, एक्सीलेंस एक्सीलेंस नहीं चाहिए, तो एनलार्ज उनकी जॉब की जाती है। लाइक मैं किसी दिन मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, एचआर मैट्रिक्स जो मैंने बनाया अपने लिए, उसमें आई ऑलवेज से कि टॉप लेवल पे जो टॉप 20 जो है आपके पास या टॉप 10 है, वही एक आदमी है जिसको आपको सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है, एंड विल बियर ऑल द प्रेशर्स हैप्पीली। उसको कुछ भी जॉब दे दो वो करेगा, बिकॉज ही फील्स कि ये एनरिचमेंट भले ना हो बट ये मेरे को सब चीज सिखा रहा है एंड आई वांट टू लर्न दोज थिंग्स। नहीं तो एक दूसरे टाइप का आदमी होता है, वो हर काम को अपना काम मानता है, ये वो व्यक्ति है। दूसरा होता है वो बोलता है दिस इज नॉट माई जॉब, व्हाई वुड आई डू। एंड यू हैव टू हैव बोथ द काइंड ऑफ गाइज इन द कंपनी। सो व्हेन आई वाज सेइंग दिस इज रंगोली एचआर एंड डांस एंड गरबास, वो एसेंशियल है बट वो पार्टी है, वो सेलिब्रेशन है, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके यूज करें, बहुत ज्यादा उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। टू हैव कोर फंडामेंटल्स एक्स एंड वाई एक्सिस सेट, वो एक्स वाई सेट नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। एनीवेज ओवर टू यू सुयशर, आई होप मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करा आपकी जैसे कम्युनिकेशन वो में। बर्थडे के लिए आपने बताया केक कटिंग्स एंड वो हाँ मुझे, मैं बड़ा परेशान होता था रिलायंस में जब साथ तो उसमें सबसे अच्छा तरीका प्रमोटर्स अगर अलाउ करें तो हाँ एम्प्लॉय को पेड हाफ डे ऑफर कर दें, वो आपका भी मुंह मीठा करा के जाएगा। हाँ सीरियसली, पेड हाफ हाफ डे दे दे और एक 500 रुपीज का वाउचर दे दे, मैं प्रैक्टिस करता था ये, और एक केक उसको फैंटेसी से ऑर्डर कर दे, ठीक है, 3 पाउंड का 2 पाउंड का जितना उसकी फैमिली का साइज है, 2 पाउंड आइडियली एप्लीकेबल। तो क्या है, उसको लगता है मेरी कंपनी ने कुछ करा, मुझे 500 रुपये का जो वाउचर दिया है वो मेरे काम का है, मैं कहीं रेस्टोरेंट में जा सकता हूँ, मुझे हाफ डे दिया है, मुझे केक के अलग से खर्चे करने की जरूरत नहीं है। इफ आई वांट टू, अगर आपको सब नहीं करना है तो कम से कम ये कर दें कि एक रेस्टोरेंट बुक कर दें, एक टेबल बुक कर दें उसके और उसकी वाइफ के लिए उसके बर्थडे के दिन, दैट विल रियली वर्क फॉर यू। दैट्स एग्जैक्टली ट्रू। नेक्स्ट ओवर टू यू। What I want to ask here is that core team में भाई कई बार ये होता है when you are hiring your first few guys you feel this is your core team, but it doesn't go in the way, because sometimes they are not aligned with your value systems and visions and value alignment is not there. So in that case what do you do, like how do you identify people, like my process of identifying if somebody matches with my vision and values, he can be a part of my core value core team, but what is the right way of doing these things technically, how to identify the core team members, the question is. See, as I said, the thought process may be different, but I can say ideology may be different, but thought process might be the same. So you like जाहिर सी बात है, शायद मुझे बीइंग एज अ प्रमोटर चीज चाहिए, लेकिन मेरे कोर मेंबर्स को शायद चीज नहीं चाहिए, पीनट बटर चाहिए। तो
वो चीज एक प्रमोटर को टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली दैट फेलो see being into core team, if he is ready to join and willing to take that risk, like startups के में joining में जो insecurity feel होता है, जो insecure feel होता है, वो risk का होता है कि setup अगर किसी कारण से नहीं चला या कोई भी F&B हुआ तो what I'll do. So if we move out from that risk myopia, we need to understand the interest. जैसे आपने अभी बहुत सिंपली कहा कि मैं 500 रुपए का वाउचर दे दूँ, उसकी इच्छा, his wish, what he want to do. So maybe perks, maybe incentivize them, maybe into a different way, the way they want. True. So Maslow's hierarchy of needs. Yeah. So based on that, incentivize them. Maybe he's passionate to have a very good sedan car rather than, and somebody have the family responsibilities where he need to support his family. So everybody have their different importance. Of my question is not about incentivizing. My question is, how do you identify whether he's a good fit for core team or not? See, we need to check that fellow while giving them ownership and identifying that whether he is going to take that ownership or not. If he is willing to take that ownership, if he set you free from that project or from that business, he is taking that ownership, that work. So मैंने बहुत प्रिंसिपली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कहा था कि मुझे वी वर्ड नहीं चाहिए, WE, that let's come together, India is our country, this is our company. So when this our word come, everybody is shaking the responsibility, so एक दूसरे के shoulders पे. This is my word. So that instead of our word, if it is my country, it is my home, it is my Indore, I make it clean. That is. So if it is our Indore, तो our Indore ही रहता. It is my Indore, I make sure that it will be the cleanest city of the country. So that my word will be. This is very significant. You have to focus on my rather than our. तो मेरा काम है तो मैं कर लूंगा, मेरा घर है तो मैं संभाल लूंगा, मेरा शहर है तो मैं कर लूंगा, बिल्कुल ठीक है. उसमें आप बहुत छोटे से एग्जाम्पल से ओनरशिप देख सकते हो. आप ऑफिस में बैठे हो, आपका मॉडेम या राउटर नहीं चल रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन वो रिसोर्स डेडिकेटेड है, वो मोबाइल डेटा ऑन करके कनेक्ट करके अपनी डिलीवरी दे रहा है. वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट दैट गिव इन पंक्चुअलिटी की यस तो आपको दिखता है कि वो मेरा काम मान रहा है. ट्रू. यहाँ पे इस क्वेश्चन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरा है, जो मेरे ख्याल से सारे एंटरप्रेन्योर्स को समझना चाहिए, और ये एक बात मात्र समझ गए आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि संघ से सीखिए. मैंने तो वाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैज बिकम सो बिग, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी में इतना जादूगरी कैसे हो रही है, बिकॉज मैं सब्जेक्ट इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो आई रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. एक इंटरेस्टिंग चीज है, लोग पैसा दिए बिना काम करवाते हैं, फिर भी लोग मर के काम करते हैं इनके, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पावर थिंग्स एंड ऑल. ठीक है. इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब भारतीय जनता पार्टी में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन रखा है कि चुनाव में टिकट देने के लिए एक आदमी के दो मेन क्वालिफिकेशन है. एक होना चाहिए उसको टिकाऊ. ये मुझे नरेंद्र सिंह तोमर जी के एक स्पीच में मिली थी ये बात. नरेंद्र सिंह तोमर अभी मध्य प्रदेश के लोकसभा सॉरी विधानसभा अध्यक्ष, तो भारत के वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं. तो ही वाज ट्रेनिंग अस, सो वी लर्नड दिस कि अगर आप में ये दो क्वालिटी है तो कोई भी पार्टी आपको आगे ले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ले जाने की आगे ले जाने में डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं और कोशिश करेगी. यही हमारे एचआर में होता है. तो ये दो क्वालिटी कौन सी है? पहली होती है उसको टिकाऊ होना चाहिए, मतलब उसका विजन, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी वैल्यूज जब हमसे मैच करती हैं तो वो कहीं भी जाएगा वो हमारे लिए टिकाऊ का होकर रहेगा, क्योंकि वो जुड़ा कोर से. आपका कोर और उसका कोर सेम हो गया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो विजन वैल्यूज में आपके साथ जा रहा है प्रॉपर, अब मिशन तो मैं बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, तो मैं विजन और वैल्यूज पे ही बात कर रहा हूँ. मिशन पे विल बी टॉकिंग समटाइम एल्स. आज बात यह है कि वो बंदे का विजन और वैल्यूज और आइडियोलॉजी आपके साथ मैच करती है कि नहीं करती, ये आप उसको आपको ये देखना है, एंड ही विल बी अ टिकाऊ फॉर यू. स्किल्स जिसको हम कॉर्पोरेट में बोलते हैं, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं जिताऊ. तो एक आदमी को टिकाऊ भी होना चाहिए और जिताऊ भी होना चाहिए. उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी ऐसी होनी चाहिए
कि वो चुनाव जिता के ला सके, वो जीत सके अपने बल पे। इसका मतलब आपके यहाँ पे जो सुरेश जी ने बात करी कि वो स्किल सेट तो लाए ही लाए, वो आइडियोलॉजी स्किल सेट के साथ में उसका उसके दिमाग में जरूरी ये होना चाहिए कि वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू डू दिस स्टफ आई एम रेडी टू डू बिकॉज दिस इज माई जॉब, माई वर्क, ये मेरा काम है, ये मेरी कंपनी है, ये मुझे आगे ले जानी है। ये भाव जब आ गया आपके बंदे में तो वो आदमी जिता हुए, आप उस पर रिलाय कर सकते हैं। ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड डिपेंडेबल, हम बिजनेस मार्शल्स के लिए 3 कोर वैल्यूज बनाए थे। उसमें डिपेंडेबिलिटी उसी पे आ सकती है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी एक साथ मौजूद हो, वो जिताऊ भी हो टिकाऊ भी हो। इज aligned with your vision, values and ideology, is aligned with his task, his skills, and he wants to अपडेट हिमसेल्फ कंटिन्यूअसली, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो फाइट करने की में लगा ही हुआ है पूरे टाइम। दिस इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज आपको ये नहीं सिखाना पड़ेगा उसको कि अगली स्किल क्या सीखनी है, उसको पता है मेरे को अगली स्किल क्या सीखनी है, उसने पहले ही प्लान बना रखा है कि 4 चीजें क्या करनी है। सो दिस इज वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू सर इज दैट एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन एंड बेनिफिट। अभी हम एक कंपनी के लिए कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स बना रहे थे, मैं मेरा आंसर बाद में दूंगा इस चीज को लेके, वो भी आप सुनिएगा, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको दोनों, बिकॉज मैंने 10-12 साल जो शुरू में एचआर ओडी और इन सब में 15 साल बिताए हैं, उसका एक ऑब्जर्वेशन यहाँ आ जाएगा। अभी भी हम लोग वी आर स्ट्रेटेजिक एचआर कंसल्टेंट फॉर मेनी कंपनीज। सो हम एक कंपनी का अभी एक कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट प्लान बना रहे थे, तब हमने कुछ चीजें यूज करी हैं। आई वॉन्ट टू सी योर पर्सपेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग अ compensation and benefit plan, particularly for the companies who are 100+ now. I'm talking about 100 से 500 या 0 to 500 की कंपनीज जो होती हैं, उनके लिए कंपनसेशन एंड बेनिफिट बड़ा सिग्निफिकेंट चीज हो जाती है, बिकॉज वो कई बार एंगेजमेंट का रीजन बनता है ज्यादातर टाइम। सो ओवर टू यू सर, कैसे अच्छा कंपनसेशन एंड बेनिफिट सिस्टम बनाया जाए। पीएमएस पे तो हम बाद में ही बात करते हैं, अभी हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं। इंसेंटिव्स कैसे होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। दो चीजें एक साथ हैं। First is compensation. So what all components we need to take care in the compensation which help my individual to save the taxes as well. बड़ी बात। Second thing is benefits, the direct and indirect benefits which attract, engage and involve. So अगर हम बेनिफिट्स की बात पहले करें या कंपनसेशन के कंपोनेंट्स की बात पहले करें, तो अभी जो रिवॉल्यूशन 1948 फैक्ट्रीज एक्ट में था और जो रिवॉल्यूशन 2019 वेज कोड में है, वो बहुत बड़ा है। तो 1948 से लेकर ओनर्स एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, पैटर्निटी एक्ट और जितने भी एक्ट्स थे उन सबको खत्म करके वेज कोड कर दिया। तो अब गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसमें एक ही कंपोनेंट है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स फ्री अप टू 50,000 रुपीज पर ईयर। तो हमारा जो कंपनसेशन का स्ट्रक्चर है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड विद ओनली 3 कंपोनेंट ऑफ अर्निंग, बेसिक एचआरए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नो मैटर व्हाट सीटीसी वी आर ऑफरिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक्स अमाउंट ऑफ सीटीसी माइनस 50,000 रुपीज, द रिमेनिंग अमाउंट जो निकल के आता है उसका 60% बेसिक एंड रिमेनिंग 40% एचआर। फिर से इसको एक्सप्लेन कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंपल 3 कंपोनेंट्स मैंने उठाए हैं अर्निंग के, बेसिक, एचआरए, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। गवर्नमेंट नॉर्म से स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू ₹50,000 पर ईयर टैक्स फ्री, एग्जेम्प्टेड है। हाँ। तो लेट्स से एक एग्जांपल कि किसी इंडिविजुअल की सैलरी है 12 लाख रुपए साल। ठीक है। तो 50,000 माइनस 11,50,000 रुपए जो अमाउंट बन रहा है उसका 60% एचआरए, तो बेसिक डाल दीजिए। ठीक है। एंड रिमेनिंग 40% इनटू एचआरए। एंड थर्ड कंपोनेंट जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर वो 1 लाख रुपए महीने की सैलरी का रिसोर्स है 12 लाख से, तो 4167 इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट, समवेयर अराउंड 67,333 will be basic, or around 36,333 will be the HR. Okay. Sum assured is 1 lakh. And what are the reasons of designing it such a way? See, 2 things. आप जितने ज्यादा कंपोनेंट्स रखते हैं कंपनसेशन में, वो अब टैक्सेबल है।
तो जो टैक्स कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेट्रो सिटी है 50% ऑफ द बेसिक, और एक्चुअल विच एवर इज लेस इज एप्लीकेबल, और नॉन मेट्रो तो उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है ये। उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, वो एम्प्लॉय के लिए बहुत फ्रेंडली है। उसकी सैलरी स्लिप या सैलरी एनेक्शन में भी उसको बहुत कंपोनेंट बहुत इजी होता है। ये 3 कंपोनेंट की अर्निंग है, ये टोटल है। इसमें जो भी डिडक्शन है, प्रोविडेंट फंड का है या प्रोफेशनल टैक्स का है या टीडीएस का है, वो सारा सिंपल कैलकुलेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Next component which we say about benefits. So benefits may be splitted into various pieces and parts. Since whom we are dealing and what is their priorities, वो बहुत ध्यान ज्यादा रखिए आपको है बेनिफिट्स प्लान बनाने के लिए कि अगर मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़ा यंग है, तो वो फ्रिंज बेनिफिट्स में बिलीव करेगा, वो वर्केशंस में बिलीव करेगा, वो इम्पोर्टेंस नहीं समझता है शायद मेडिकल सपोर्ट की। लेकिन जो मेडिक्लेम एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को देता है और उसमें उसकी फैमिली स्पेशली पेरेंट्स को कवर्ड हो जाए तो वो बड़ी चीज होती है, वो बहुत बेनिफिटेड होता है। उसको अगर कम्युनिकेट प्रॉपर किया जाए एम्प्लॉइज में, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एम्प्लॉयर को जो किटी देना होता है वो कम होता है। Very practical example, if my father is 65-70 year old and he is diagnosed with any of the diseases, so if I plan for a mediclaim, most of the cases मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं किसी एम्प्लॉयर से लेता हूँ तो सिर्फ मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ देना है, नो मेडिकल हिस्ट्री ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट कवर्ड। आई हैड ये एम्प्लॉय के लिए तो बहुत ही बड़ा बूस्टिंग पॉइंट हो जाता है। मेरी हायरिंग में एक एग्जांपल है कि एक रिसोर्स वांट टू लीव हिज प्रेजेंट एम्प्लॉयर बट ही नीड टू चेक whether how much mediclaim I am going to provide him for the new job. Why? Because his parents are old age and this existing employer having a very good mediclaim policy where he is taking benefited out. वो 20 लाख की mediclaim policy में है और उनको लगभग 10 लाख रुपए साल या 12 लाख रुपए साल लग जाते हैं। उसका रिटेंशन टूल है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है भाई उसकी लाइफ में, तो उसकी सारी सेविंग्स बढ़ा है वो। First example I am saying about benefits. Maybe other fringe benefits can be, but medical is something which goes very close to an individual. True. किसी आपकी सिस्टम में 2, 4, 5 लोगों को भी जब उसकी जरूरत पड़ जाती है और वो उसके बेनिफिट लेते हैं तो दैट विल कम्युनिकेट टू ऑल दैट 500 को चला जाता है। हाउ मच इट इज। टीसीएस बहुत 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 बेनिफिट उठाई इस चीज का, और टीसीएस को बहुत फायदा होता है इन चीजों का बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय केयर। वो जितना करते हैं, और पर्टिकुलरली यही एग्जांपल जो मैं देख रहा हूँ, टाटा ग्रुप की सारे ही एम्प्लॉय जो मिलेंगे आपको, वो इस बात में जरूर बात करेंगे, नहीं यार पेरेंट्स कवर्ड है, ठीक है, और वो बड़ी बात है। तो एक बेनिफिट तो ये है, दूसरा फ्रिंज बेनिफिट। तो नाउ आपने भी सुना ही होगा बहुत ऑफनली कि यू नो this is the revolution time. Earlier it was industrialization, then it become information technology, then it become digitalization, and now this is a revolution of socialization. Attracting new talent and retaining them in the system, they move beyond that food roti kapda makan wali clarity se bahut aage. They want lifestyle, they want a quality of life. True. तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेनिफिट्स जो होते हैं वो उनके जॉब के साथ हम कितना ज्यादा एंगेज कर सकते हैं। अभी बहुत ट्रेंडिंग है कोविड के बाद से, दैट कॉल्ड वर्केशन। फाइन, अगर मैं एक स्टैंड अलोन रिसोर्स के साथ काम कर रहा हूँ या कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, ही इज मीटिंग माय एक्सपेक्टेशन, आई एम रेडी टू गिव देम स्मॉल बेनिफिट। ओके फाइन, गो टू ऋषिकेश, गो टू गोवा, डू द वर्केशन फ्रॉम देयर, राइट। अगर हम वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, no matter whether he is into Bay Area or a beach area or dining table. True. That fringe benefit is now, attracting people apart from second, first is still medical support. Second can be other fringe benefits like this vacation. And third benefit, which I say, that is, how much we care our people apart from considering them as a resource. Why I'm saying this, how much we concerned about their personal life and their health. अब और उसमें हम बहुत अट्रैक्टिव कॉन्टेस्ट के साथ रिवॉर्ड कर सकते हैं, लाइक कि और
और वो रिवॉर्डिंग जो होती है वो ई कॉमर्स के साथ में करके दे सकते हाँ, यू कैन एक्चुअली हैं। यूज हम ई नहीं देना चाहते, हम कॉमर्स, पीवीआर, प्रिंटेड कॉफी मग नहीं देंगे। हाँ, बजट थिंग्स एंड ऑल। इट्स अ बेटर कि मैं ई कॉमर्स दूं और एक कॉन्टेस्ट रखूं फिटनेस का, वेयर दे आर प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट ऑन देयर फिटनेस पार्ट एंड हाँ, दैट अभी इनफैक्ट निंजा कार्ट ने बहुत अच्छा पिछले साल ये एक्सरसाइज करी थी, एंड आई फिट अप्रिशिएट बंदा। देयर एफर्ट अ लॉट बिकॉज उन्होंने उनके सारे ही बंदों के वेट कम करवा दिए बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन एंड ऑल। आई डिड बहुत विद अच्छा काम। फिट बंदा के साथ मैंने बहुत काम किया, और व्हेन वी इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। निंजा कार्ट ने अपने सारे एम्प्लॉयज, सारे टॉप एम्प्लॉयज के लिए वो बेनिफिट्स प्लान करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आई वुड लाइक टू एड वन थिंग, that when you are planning incentives and benefits of your employees, particularly you have to understand बेसिक है बिल्कुल साइकोलॉजी का, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। वो किस जगह खड़ा है उसके जीवन में, उसके लिए वो चीज बहुत मायने रखती है, उसका वो प्रेशर समझने की कोशिश करें। और उसके आधार पे यदि आपने इंसेंटिव प्लान्स करे, कॉम्पिटिशन्स प्लान करे, बेनिफिट्स प्लान करे, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। जैसे अगर वो व्यक्ति ही इज इन हिज अर्ली 20s एंड बेसिक्स पे खड़ा है, तो उसके लिए शायद उसके मदर फादर का जो मेडिकल है उतना टेंशन नहीं है। बट इफ समबडी इज इन हिज 30s, तो वो मेडिक्लेम उनके लिए बहुत मायने रखता है, बिकॉज अब पापा की एज भी ज़्यादा हो गई, मम्मी की एज भी ज़्यादा हो गई, मेडिकल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिल नहीं रहा है, ये सारे लेवल्स हैं। फिर दूसरी बात, अभी वी आर टॉकिंग कि 50 लोगों से या 100 लोगों से कम की कंपनी है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाउंडर ऑफ द कंपनी कि उसको सारे लोगों के बारे में पता हो कि उनके घर में भी क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। पर्टिकुलरली एचआर वालों की तो ये मेन कोर जॉब होना चाहिए 100 लोगों से कम की कंपनी में, ताकि आप वो छोटी सी चीज, वो जो खरीदना चाह रहा है ना, उसमें छोटा सा एलिमेंट आप डाल सकें। जैसे किसी को, कोई एक लड़की आपके यहाँ ज्वाइन करी है, वो कहीं बाहर से है, जैसे इंदौर में यदि आप बैठे हैं और वो रतलाम से, दमोह से, दतिया से कहीं से आई है, एंड शी इज स्ट्रगलिंग ऑन हर ऑन, अभी वो बस से आती जाती है, एंड यू हैव जस्ट डन द डाउन पेमेंट एज एन इंसेंटिव और कंपटीशन फॉर हर स्कूटर, 5-10 हज़ार रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, और 2-5 साल उसके दिमाग में रहेगा, यार दिस गाइज हैव डन दैट। और फिर वो वैल्यू, फिर किसी, कोई लड़का है उसका लैपटॉप खराब हो गया है, नाउ यू बॉट द लैपटॉप फॉर हिम। कोई एक छोटी सी चीज होती है, जैसे ही वो, आपके ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा चीजों पे खर्चा नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो दे आर इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। 4 वेकेशन हर व्यक्ति को जाना होता है, आप चारों वेकेशन अपनी टीम के साथ में, एक एक उनके स्पाउस के साथ में प्लान कर लीजिए और उसको कंपनी के खर्चे में डाल दीजिए यदि आपको डालना है। नाउ व्हाट हैपेंस, वो जो लाइफस्टाइल जीना चाह रहा है, आपकी लाइफस्टाइल में आप खुद, हम प्लान करते हैं कि हम क्या करेंगे, तो हम ये बोलेंगे हम वेकेशन पे जाएंगे, वो बेचारा वेकेशन पे जा ही नहीं पा रहा है। आपके यहाँ पे आप बेवजह कंपनी, सरकार को टैक्स भर रहे हैं, हाँ, वो उसकी सैलरी में भी टैक्स भरता है, आप अपने प्रॉफिट्स में से उसको निकाल के देते हैं सारे खर्चे, सब जगह टैक्स 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 जा रहा है। आप भी टैक्स भर रहे हैं, वो भी टैक्स भर रहा है, इसकी जगह उसको खर्चे में काट दीजिए कंपनी में। एंड वो क्या होगा, आप 4 वेकेशन वो जाने वाला है, 2 वेकेशन अपने साथ ले जाइए, उसके स्पाउस को ले जाइए, उसके पार्टनर्स को ले जाइए, वो जिसके साथ रह रहा है उसको ले जाइए। दैट इज गोइंग टू बी बिग थिंग फॉर दैट गाय हु इज विथ यू। एंड ऐसी 50 चीजें और कर सकते हैं आप, उसको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या वेकेशन दे रहे हैं, क्या घड़ी खरीद के दे रहे हैं, कौन सी कार में डाउन पेमेंट दे रहे हैं। बहुत साल पहले आई डिजाइन फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, आई बिलीव 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एक प्लान डिजाइन किया था। वो लोग छोटी छोटी गिफ्ट देते थे डॉक्टर्स को, आई सेड उनको कार गिफ्ट करो यार, कार गिफ्ट करो और कार का डाउन पेमेंट आप दो। अब ये एक एचआर से हटके है, बट चूंकि वो एक एग्जाम्पल है जो काम करता है। जब आप कार उसको गिफ्ट कर रहे हैं और उसकी पसंद की कार गिफ्ट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं सर डाउन पेमेंट हमारी तरफ से, हम ही आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट भरेंगे, अब आपको क्या करना है आपको पता है, हमारी दवाएं लिखना है। अब कार का जो पेमेंट है वो 5 साल तक चलेगा, वो 5 साल तक आपकी दवाएं लिखता रहेगा। उसको छोटे छोटे गिफ्ट तब भी दीजिए, बट बड़ा एक बार दे दिया तो वो बंद गया। And these are the things that you can actually do as employers, this work. So my last and final question is that how do you create a proper HR funnel, recruitment funnel particularly? Because बहुत सारे चैलेंजेस हैं अपने आप में रिक्रूटमेंट में। आप कैंपस में जाते हैं, 50 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, 5 ज्वाइन करने आते हैं, 50 है ना।
जो ज्वाइन करने आते हैं वो कई बार ऑफर लेटर ले लेते हैं, ऑफर लेटर लेने के बाद चले जाते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आपके पास एक ऐसा जो कॉस्ट इफेक्टिव फनल है वो बनाना बहुत जरूरी है एचआर में। हाउ डू यू क्रिएट दैट, बिकॉज वो एक लार्ज नंबर का हायरिंग जो आपने किया है, इतने इतने लार्ज नंबर, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हायरिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल इज नॉट एन इजी टास्क, और वो आपने किया है, तो हाउ डू डिड यू डू दैट? See, to create a right recruitment process or to create a right recruitment and adjusting with funnel, हमारे कुछ homeworks होते हैं। जैसे मैं तो बताना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी वीडियो में कहा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जॉब डिस्क्रिप्शन कम्स अंडर फैमिली ऑफ मैन पावर प्लानिंग। एंड मैन पावर प्लानिंग का दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब एनालिसिस, विच इलैबोरेटेड इनटू 3 पार्ट्स: इवैल्यूएशन, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। तो हमारी प्लानिंग्स में हमारा पार्टिसिपेशन बड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। दूसरा होमवर्क जो मेजर होमवर्क है वो है इंडस्ट्री नॉलेज। सो वी आर डूइंग राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, लाइक रिवॉल्यूशन क्या है, आगे क्या आएगा, और हमारा एट्रीशन, करंट एट्रीशन क्या है, कितना परसेंट रिसोर्स हमारे यहाँ से जाता है। एनालिटिकल्स, मतलब सिंस आप ज्यादा बेटर कनेक्ट करेंगे कि रिसर्च एंड एनालिटिकल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड नॉर्मल mid segment organization, even 500 plus people company, try to avoid this particular thing, to go for analyticals part, that how much is their attrition, what is the average tenure their resources are spending in the organization, and while leaving the organization, what are the reasons of their left, like, you know, for better prospects or for moving something else, what is the number of absconding people, that give us an insight about the ट्रेंड इन द कंपनी, कि ये ट्रेंड क्या रहता है, और उसका सीजन इम्पैक्ट भी होता है। हाँ, लोगों के एग्जिट्स होने का, लोगों के स्विच करने के सीजन्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं अप्रैल, सबसे अच्छा सीजन है। मैं ओपनली बताऊं तो इंदौर की 3 बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉइज सबसे ज्यादा रिज्यूम अपडेट करेंगे। अप्रैल मई जून में अपडेट करेंगे, जून से हायरिंग शुरू कर देंगे अपडेट कर देंगे अपनी रिज्यूमे, बिल्कुल अभी 4-5 अप्रैल के बाद। क्यों? क्योंकि मार्च में उनके फाइनेंशियल्स में अप्रेजल्स होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू डिसैटिस्फैक्शन नंबर आएगा वो 5-6 अप्रैल को, जब अप्रेजल लेटर रिसीव करेगा, वहां से अपडेट करता है। 6% का अप्रेजल, 7% का अप्रेजल, तो देख के दुखी हो जाता है मतलब मेरे से जूनियर को हायर करा है आपने, वो मेरे से 1.5 गुना सैलरी ले रहा है, मेरे को आप 7% का अप्रेजल दे रहे हो। सेकेंड नंबर्स विल कम इन जुलाई। हाँ, हमारे इंदौर के आईटी में ये 2 महीने बहुत अच्छे होते हैं हायरिंग के लिए, अप्रैल एंड जुलाई। तो दिस इज व्हाट, ये बड़ा प्रैक्टिकल सी, मतलब ये दिस इज व्हाट बेस्ड ऑन माय 15 years of learning I am coming up this outputs कि ये ट्रेंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि with the help of our industry network we know कहाँ अप्रेजल्स खत्म हुए हैं, कहाँ से रिसोर्सेज का डिसैटिस्फैक्शन आएगा, because you cannot make everybody happy, to be very honest in the inside the system। आप ही ने कहा कि कुछ लोग मीडिएटर परफॉर्म ही करेंगे और दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। सो दिस इज द रेस वेयर यू नीड हॉर्सेस आल्सो, एसेस आल्सो एंड एसोल्स आल्सो। तो एसेस आर देयर व्हिच वी कैन अपडेट। तो ये जो हमारे होमवर्क है, इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आईजेपी, दैट इज इंटरनल जॉब प्रमोशंस। तो अगर हम इन तीनों का होमवर्क बहुत अच्छा रखते हैं, आप बड़े से बड़े बिग ब्रांड्स की हम बात करते हैं, हर साल TCS used to come recruit 15,000 freshers every year. What they do with them? Because they believe into strong IJP cycle. So those freshers, those who selected 2 years back, they are on the floor and that funnel keep on moving. तो ये मेरा highly suggestion रहेगा मिड सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि 0 to 3 years एक्सपीरियंस को हायर ना करें, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के एनालिसिस को करें, स्किल्स की कॉम्पिटेंसी को मैप करें, एंड इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ पर्सन हुज एक्सपीरियंस रेंज फ्रॉम 0 to 3, बेटर टू हायर फ्रेशर बिकॉज ही विल बी मोर productive within a span of 3 months, and your organization compensation structure will be very lenient or very straight। क्योंकि वेरिएंस जो आता है वो 0 to 3 में 1 year एक्सपीरियंस, 2 year एक्सपीरियंस की डिमांड या वो हमारे कंपनसेशन ब्रैकेट्स में नहीं है।
और वो भी सिस्टम में आएगा, सिस्टम को समझेगा, प्रोसेस को समझेगा, प्रोजेक्ट को समझेगा. He took another 45, 50, 60 days to become productive. It's better to, instead of hiring 0 to 3 years, hire fresher, train them, skill them, update them, check their skills first. And when they learn, they'll leave. No, we can keep them engaged with the system, but they can replace that particular, and with the help of this hiring, you don't have variation of compensation. You can have a standard salaries based on your bands, based on designations. जो सबसे ज्यादा वेरिएंसेस हमें देखने को मिलते हैं कंपनसेशंस के, वो ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेकर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर तक ही मिलते हैं, अगर आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए. टेक लीड, टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट, these all have some of the brackets, उसी की रेंज में रहते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा वेरिएंस हमें देखने को मिलता है 1 year to 3 years एक्सपीरियंस. और उसी में ही हमें एट्रिशन भी देखने को मिलता है, चल मन जिसे कहते हैं. हाँ, तो to hold that variance, what we have to do is that we have to just have a fixed package kind of or fixed system kind of things, and एक threshold पे ही उसको hire करो, recruit करो, and then groom him, और फिर उसको upgrade करते चले जाओ salaries में, और उसको engage रखो. वो बैलेंस राइट. हाँ, he'll love to be with the company at least for next 3 years. He would not like to move. इसमें आप इंगेज करने के लिए, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे उनकी नीड्स के हिसाब से उनको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, उनको पर्क्स या फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं. और ये एक पहला प्रोसेस है जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है हमारे. और जो फनल वाली बात आती है वो हमें देखना होता है परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको बताया एट्रिशन. तो एट्रिशन का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है कि हमारा ट्रेंड क्या है एंड हाउ वी कैन कंट्रोल. कैंपस हायरिंग से जॉइनिंग्स का जो नंबर्स इंक्रीज करने का जो सबसे ज्यादा तरीका होता है वो बेसिकली होता है पीपल ब्रांडिंग. तो दिस इज ऑल अ गेम ऑफ अवेयरनेस एक्चुअली. True. So, whenever you plan for a campus, what type of institutional relations you have. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ एलुमनाइज का इतना इम्पैक्ट है कि ना वो ऑर्गेनाइजेशन उस कॉलेज में कैंपस लेने जाती है, ना वो कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट करके स्टूडेंट्स कंपनी में भेजते हैं. लेकिन हर साल उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा नंबर उस इंस्टीट्यूट का सिलेक्ट होता है, हायर होता है, बिकॉज इंटरव्यू लेने वाला उसका उसी कॉलेज का एलुमनाई. तो वो इतनी लंबी वर्ड ऑफ माउथ ब्रांडिंग बन चुकी है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि दोनों ही इंस्टीट्यूट आपस में कनेक्टेड नहीं है. उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा नंबर, मतलब करीबन 27% of their fresher hiring is done from that institute without going for campus drives. Because we have hundreds of examples. Project manager भी उस कॉलेज से है, तो टीम लीडर भी उस कॉलेज से है, तो कई सीनियर डेवलपर जो अब वो आपस में बात करके चले जाते हैं. आपस में बात करके चले जाते हैं. वो इंगेज है. और दूसरी कॉर्पोरेट कनेक्शन, ये एक प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंटेटेड प्रोसेस है, जो बैक एंड पे हम काम करते हैं. फ्रंट एंड का जो बात है वो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटेंसी, इफ वी चेक स्किल्स, तो हमारी कॉस्टिंग रहेगी कि हम स्किल्स देख लें ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट पे जाने की जगह. तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ पाइथन डेवलपर, इफ वी, आई एम जस्ट गेटिंग एन एग्जांपल कि अगर हमें कोई ऐसा रिसोर्स मिलता है जिसका जावा स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है, तो पाइथन वी कैन लर्न विद इन 15 days. जावा स्ट्रांग है तो पाइथन क्या लगेगा, उसको टाइम ही नहीं लगना. बेस अगर उसका फंडामेंटल्स अगर you need to go a little back step to understand the fundamentals first. किन बेसिक फंडामेंटल्स की, किन बेसिक स्किल्स. अभी आज ही हम गूगल स्क्रिप्ट्स के कुछ टूल्स पे बात कर रहे थे, तो वो बात वही निकल के आई कि जावा स्क्रिप्ट आता है क्या, बोले हाँ सर. तो मैंने बोला 2 दिन में तेरे को गूगल स्क्रिप्ट पूरा आ जाएगा. फिर इट्स नॉट गोइंग टू टेक टाइम. Now, my last question is, what are the 3 things that you want founders to remember while developing a robust team in the company? See, the first thing is delegate ownership. Okay. The first, so you have to delegate the task, delegate the ownership. That I'm not responsible, you are responsible. A simple word. It's same as your company as well. So if we dedicate the ownership, that fellow take the ownership and do the task. Second thing is trust. और ट्रस्ट बहुत बेसिक चीजों में आता है.
बहुत बेसिक, मतलब 20 लोगों की कंपनीज में भी एक चीज मिस करते हैं वो लोग, कंपनसेशन टाइम पे देते, सैलरी स्लिप्स नहीं देते, वो ट्रांसपेरेंसी मिसफिट होती है। मिसिंग है। हाँ हाँ, छोटी छोटी बेसिक चीजों में। फंडामेंटल, बहुत बेसिक फंडामेंटल। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वो ट्रस्ट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी इज, आई एम नॉट सेइंग प्रमोटर्स कि यू कैन गिव देम एक्सेस ऑफ देयर इंटरनेट बैंकिंग एंड पासवर्ड, आई एम जस्ट आस्किंग देम टू गिव दैट ट्रांसपेरेंसी। It is just the walk your talk. So build trust, बस delegate, then and third thing. yes, then assign ownership or delegate ownership. The third is involving them. Okay. So कई बार मिड सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्वमेंट मिसिंग होता है। अब इन्वॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि दे आर गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रमोटर, बट सजेशंस एंड आइडियाज आर ऑलवेज वेलकम। True, true. तो अपनी जापानीज एक अप्रोच होती है ना सर, QWL की quality of work, like their shop floor resources has to identify the solution of the problem, and then they give the best solution to the promoter or to the decision maker of the management, and they implement it. But since I they practice it like hell. मतलब are मेरी कंपनी में तो मैंने इसको जीवन भर प्रैक्टिस करा, आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। अगर प्रॉब्लम लेके आए हो तो तुम्ही को सोल्यूशन लेके आना है, और उन तीन सॉल्यूशन लाना एसेंशियल है। उन तीन सॉल्यूशन में से जो कंपनी के बेनिफिट में मुझे लगेगा, आई कैन हेल्प यू टू मेक दैट डिसीजन। बट मेरी तरफ से फिर भी फोर्स नहीं करूंगा। जो डिसीजन तीनों में से मुझे अच्छा लगेगा वो मैं बता दूंगा, तुम फिर भी फाइनल डिसीजन खुद लो, और जो लोगे उसके रिस्पॉन्सिबल फिर तुम हो। ये दैट तीन, इज द प्रोसेस। this the three things like transparency and trust. Transparency, trust, and involvement. That's So I hope you start practicing in your company transparency, trust, sorry, and delegation, transparency, trust, and involvement. Basic trust and transparency are in the same thing. So these three things are important. A, delegation. B, trust. C, involvement. जब आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे तभी ट्रस्ट आएगा। दैट इज एसेंशियली, वो टाटा ग्रुप में बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी ब्रीड्स ट्रस्ट, एंड टाटा मींस ट्रस्ट। सो टाटा ने क्या कमाया? ट्रस्ट। कितने साल में कमाया? 150 साल में। आप क्या कमा सकते हैं? ट्रस्ट। ब्रांड किससे बनती है? ट्रस्ट से। ब्रांड प्रीमियम कैसे कमांड होता है? ट्रस्ट से। ब्रांड प्रीमियम कमांड करके क्या बेनिफिट होता है? यू कैन चार्ज एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करता है एप्पल, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एप्पल that has come from trust. So you have to understand these three things if you really want to have a great team. And believe me, अगर आपके पास में कोर टीम ऐसी रही जो इन्वॉल्व है, आप पे ट्रस्ट करती है, और आपने उसको पूरी कंपनी डेलीगेट कर रखी है उसके उसके हिस्से की चीजें, आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, बहुत बढ़िया चलेगी। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम्स सारे एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं, अच्छा आदमी मिलता नहीं है, मिलता है तो रुकता नहीं है, रुकता है तो बहुत महंगा पड़ जाता है ना। और अगर मैं उसको रोकना भी चाहूँ तो 10 कंपनियां हमेशा खींचती रहती हैं, और फिर वो ऐसा लगता है कि मैं उसकी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। समटाइम ही डजंट अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, और फिर मुझे अंडर प्रेशर आई हैव टू से गो बॉस। कई बार ये होता है आपका बेस्ट बेस्ट एम्प्लॉय बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, और वो प्रॉब्लम आप बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने फेस करी, और फिर फाइनली वो दोनों झगड़ के अलग हो जाते हैं। ये जो सारे कहानी है, इट हैज कम बिकॉज ऑफ मिसिंग दीज थ्री थिंग्स। आपने इन्वॉल्व नहीं किया अगर अपने टॉप एम्प्लॉय को अपने डिसीजन में, आपकी प्रॉब्लम बनने वाली है। क्योंकि उसके डिपार्टमेंट का, मान लीजिए वो उसके डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट हेड है, आपने उसको इन्वॉल्व करे बिना कोई डिसीजन उस पर थोपा, तो अब वो बोलेगा तू ही प्रूव करके बता इसको सही। सो अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो ये 3 सूत्र सुयश जी महाराज के, ठीक है ना, श्री श्री 1008, आप प्रैक्टिस करें, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये प्रैक्टिस करने लायक है, बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। आप आज बताए हैं, ऐसे खुल के हमारी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई कभी, बट दिस रियली वर्क्स। मतलब मेरा, चूंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लाइक एनीथिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम में भी इन्वॉल्वमेंट रखो, सब चीज़ों में रखो, उनका डेलीगेशन दे दो। जैसे ही वो डेलीगेशन आया, उसको पैसा दिया, उसको टाइम दिया, उसको अथॉरिटी दी, वही करेगा। नाउ यू फ्री, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर टीम नहीं बना पाए तो आप एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन पाओगे, बिकॉज
entrepreneurship is all about team building. पूरा गेम ही वही है. So I hope you practice all these three elements and take your organization to the next level. If you have any query that you really want to ask to Shweta sir or me, you can comment in the comment box, and we'll get back to you with the solutions. Particularly if it is a particular company problem, तब फिर आपको वो अलग से we can have a discussion. But अगर it is a general problem, we can come up with a video on that thing. That's it from our side. Thank you all. Thank you, Suresh. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Bye.